Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to discuss ICSE Class 10 Chemistry paper given by KISA Preparatory Examination for the year 2024-25. Starting with section B. Question number 1 is here, question 3 from section B. So first is electron affinities of two elements A and B are given below. A is minus 3.60 electron volt and B is minus 3.80 electron volt. Which of these will ionize more easily and why? So which will ionize more? First of all, what is electron affinity? It is the energy released in converting a neutral isolated gaseous atom to an ion, means कि negatively charged anion. So यहाँ पर आपके पास दो दिए हुए हैं, -3.60 and -3.80. So it means B will ionize more easily because due to high electron affinity and hence has more tendency to accept electron. Because it has high electron affinity, it means उसकी energy release ज्यादा होगी तो वो आराम से convert हो पाएगा. तो more tendency to accept electron and become an ion. So this is the statement because Y is also asked. You have to write there. What happens to the electron affinity going down the group? तो down the group electron affinity decreases down the group. M में Y ने आपको word दिया हुआ है, उसकी वजह से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा electron affinity decreases down the group. Which element in period 2 has zero electron affinity? किसकी है zero electron affinity? जो last आ जाएगा आपका inert gas यानी कि neon. Period 2 में neon. तो neon is the answer for third part. In second, Nina used following methods for preparation of salt: neutralization, displacement, precipitation, neutralization by titration. List of salts is given below. Identify the most appropriate method from the list given above for their preparation. तो कौन सा चीज किसके लिए यूज कर सकते हैं? जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एक बेस है और एक एसिड है. इट मींस क्या कर सकते हैं यहाँ पर? न्यूट्रलाइजेशन बाय टाइट्रेशन. तो यहाँ पर आपका मेथड आ जाएगा न्यूट्रलाइजेशन बाय टाइट्रेशन जो लास्ट में दिया हुआ है. तो KOH प्लस HCl आपने ले लिया. नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. तो क्या होगा बेरियम क्लोराइड? क्या यू नो कि इसमें प्रेसिपिटेशन बन जाती है. इसमें प्रेसिपिटेशन होगा जिसमें BaCl2 प्लस NaOH है तो BaOH की प्रेसिपिटेशन हो जाएगी. थर्ड इज जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. तो जिंक ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड है तो बेसिक है और वो एसिड है. तो एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. तो न्यूट्रलाइजेशन के बाद जिंक सल्फेट और वाटर बन जाएगा. नेक्स्ट इज मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. मैग्नीशियम मींस मेटल हो गया और मेटल को जब भी हम किसी एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. तो Mg प्लस 2HCl MgCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई. इट मींस इन A पार्ट न्यूट्रलाइजेशन बाय टाइट्रेशन, इन B पार्ट प्रेसिपिटेशन, इन C पार्ट न्यूट्रलाइजेशन एंड इन D पार्ट डिस्प्लेसमेंट इज द करेक्ट आंसर. In part 3, sulfuric acid is prepared by contact process. Answer the following pertaining to preparation of sulfuric acid. First is name the gas that combines with sulfur dioxide during the contact process. As you know the step, it is conversion of sulfur dioxide into sulfur trioxide. It means we have to add oxygen here. For balancing, we has to put 2 here and 2 here. So it is a balanced reaction now. तो ये आ जाएगा आपका ऑक्सीजन गैस. You have to write the name of the gas also. So it is oxygen. In B part, write equation when the product formed in the above reaction combines with the concentrated sulfuric acid and name the product form. तो कौन सा product form होगा? In B part, we have to name the product. पहले यहाँ से जब निकला, कौन निकली यहाँ से? सल्फर ट्राइऑक्साइड. उसको किसके साथ रिएक्ट करवाया हमने? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास पहले ओलियम बनेगा H2H2O7. फिर इस ओलियम को हम डाइल्यूट करेंगे H2H2O7 को. जब आप डाइल्यूट करोगे पानी में उसके बाद हमारे पास जाकर सल्फर ये बनेगा आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड. तो इसको पानी में डाइल्यूट किया देन इट इज गिविंग अस सल्फ्यूरिक एसिड. बैलेंसिंग के लिए आपको देखना पड़ेगा इसमें वी हैव टू प्लेस 2 हेयर. So ये ओलियम प्लस वाटर डाइल्यूशन ऑफ ओलियम बोलते हैं. दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड. So this is the method contact process. In question number 4 part 1, potassium nitrate is used for the preparation of nitric acid in the laboratory. The reaction mixture is heated below 200 degrees Celsius. Give a balanced chemical equation for the preparation of nitric acid in the laboratory using potassium nitrate. तो potassium nitrate को आप लेंगे तो it is KNO3. तो KNO3 लेबोरेटरी में कर रहे हैं तो आपको पता है कि मेथड कौन सा हो जाएगा जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड एंड
बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है उसने मेन कि हम हीटेड बिलो 200 क्यों करते हैं। तो पहले क्यों बन रहा है यहाँ पर KHSO4 मींस सोडियम बाइसल्फेट फॉर्म हो रहा है। सोडियम बाइसल्फेट के साथ में यहाँ पर प्रिपरेशन किसकी है, नाइट्रिक एसिड, HNO3 इज फॉर्मिंग। तो ये तो हो गया उसका पार्ट, क्योंकि उसने बोला गिव ए बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये बस बिलो 200 अगर हम लेंगे ये बैलेंस हो गया। वाई द रिएक्शन मिक्सचर शुड नॉट बी हीटेड अबव 200, तो सेकेंड पार्ट में पूछ लिया कि बिलो रखा है, इसके पीछे रीजन क्या है। क्या रीजन हो जाएगा, हार्ड क्रस्ट ऑफ पोटेशियम सल्फेट इज फॉर्म्ड विच इज डिफिकल्ट टू रिमूव। अगर डायरेक्टली K2SO4 बनाएंगे तो उसकी हार्ड क्रस्ट हो जाती है जो स्टिक हो जाती है, तो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड डिकम्पोजेस टू फॉर्म रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, किसकी, N2O और वाटर बन जाएगा। तो ये दोनों रीजन हम दे सकते हैं इसके साथ में। नेक्स्ट पार्ट, concentrated nitric acid is heated with copper turnings. Write the equation and any one observation. अगर हमने नाइट्रिक एसिड को हीट किया है कॉपर टर्निंग के साथ, तो कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड हमने इनको हीट किया, हीट करने से हमारे पास और लिया भी हमने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ही लेना है। तो क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट बन गया CuNO3 ट्वाइस, मेन प्रोडक्ट कॉपर नाइट्रेट आ गया यहाँ पर, और साथ में NO2 और वाटर, ये दोनों भी बनेंगे। अब इसमें बैलेंसिंग के लिए हमें here we have to put 4 and 2 and then 2. Now this is a balanced chemical equation. और observation में you will write reddish brown fumes of NO2. आपको पता है NO2 की fumes reddish brown ही होती हैं, तो reddish brown fumes of nitrogen dioxide फॉर्म हो रही हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि solution turns greenish blue भी जा रहा है आपका solution। तो दोनों रीजन, ऑब्जर्वेशन में हमेशा कलर बेस्ड या प्रेसिपिटेशन जो चीज फॉर्म हो रही है वही लिखना है। ऑब्जर्वेशन में सिर्फ रिएक्शन के मार्क्स नहीं मिलते। Coming to second part, when air is drawn through the apparatus shown below, certain observations are made. Answer the questions based on the setup given below. As you can see in the setup, आपके पास platinized asbestos है, तो बेसिकली ये प्लेटिनम है जो हम एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं इस वर्ड को देख के, बट अगर आप बुक में गिवन डायग्राम्स को ध्यान से देखेंगे तो ये प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है। डाल क्या रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग एमोनिया सॉल्यूशन। आपकी बुक में अलग अलग हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डाली हुई है, तो वो ड्राई गैस करके डाल देते हैं। यहाँ पर इन्होंने स्ट्रॉन्ग एमोनिया सॉल्यूशन बना, तो वही ना N2 और H2 से एमोनिया ही फॉर्म होगा, तो एमोनिया अंदर जा रहा है। और उस तरफ हमारे पास फिल्टर पंप लगा हुआ है और डैम्प न्यूट्रल लिटमस पेपर हमने अंदर रखा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस, तो सबसे पहले वो क्या है, वो उसमें क्या काम कर रहा है, इट इज यूजिंग एज अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट आ जाएगा, प्लेटिनम कैटलिस्ट आपने पढ़ा हुआ है। ये कौन सी रिएक्शन आ रही है, कौन सा डायग्राम है, दिस इज द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया। डायग्राम ही उसी चीज का है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया। Now the platinized asbestos continues to glow even after the burner is removed because this reaction is exothermic. तो सिर्फ आप exothermic लिखेंगे रिएक्शन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हीट रिलीज हो रही है, तो इसीलिए वो ग्लो करता रहेगा कॉन्टिन्यूसली। A colorless liquid condenses at B जहां उसका ट्यूब का एंड हो रहा है, तो वहां पर कलरलेस लिक्विड बन रहा है। नेम द लिक्विड, तो लिक्विड इज वाटर, दिस कलरलेस लिक्विड इज वाटर। नेम द गैस डेट गेट ऑक्सीडाइज्ड इन फ्लास्क C, जो लास्ट फ्लास्क है उसमें कौन सी गैस है जो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, दिस इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। बट क्योंकि उसके ऑक्सीडेशन करें तो हम क्या लिख सकते हैं, अपने लिए लिख सकते हैं कि NO+O2 है एंड इट इज फॉर्मिंग NO2। तो यहाँ पर ये भी आ सकता है क्योंकि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हमारे पास NO ही बनेगा। आंसर तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ही है, बट क्योंकि उससे बोला कि बन रहा है तो मैं आपको रिएक्शन बता रही हूँ। ऑक्सीडाइज हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो NO2 फॉर्म हो रहा है। This whole question is related with catalytic oxidation of ammonia. Third part, answer the following questions based on the extraction of aluminium from alumina by Hall-Héroult process. Why is powdered coke sprinkled on the top of electrolyte? ये तो आपको पता ही है, हम इसमें रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आता ही है हर बार। To prevent oxidation at anode by oxygen evolved, ताकि एनोड की ऑक्सीडेशन ना हो जाए। और दूसरा रीजन इसके अंदर है टू मिनिमाइज और प्रिवेंट हीट लॉस बाय रेडिएशन, जो रेडिएशन से होने वाला हीट लॉस है उसको कैंसल तो नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इज नेम द इलेक्ट्रोड वेयर एल्यूमिनियम इज कलेक्टेड। तो आपको पता है एल्यूमिनियम मेटल है और मेटल जनरली कैथोड पे ही कलेक्ट होता है, तो यहां पर कैथोड आ जाएगा।
In question number 5, in the preparation of an ammonia in industry, the raw materials are nitrogen and hydrogen. जैसे मैंने अभी ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज करते हैं. These are mixed together in the correct proportion to get maximum yield of ammonia. जैसे आपको हेबर प्रोसेस भी पता ही है. Write the balanced chemical equation for the preparation of ammonia. तो हमें balanced chemical equation लिखनी है. तो N2 and H2 we are combining and it is forming NH3. बट क्योंकि यहाँ पर 3 है तो हमें यहाँ पर 3 लगा के इसको 2 लगा के बैलेंस करना पड़ेगा. तो N2 plus 3H2 इट इज फॉर्मिंग 2NH3. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब भी मांगी जाती है तो आपको कंडीशंस भी देनी है. तो कंडीशंस क्या हो जाएंगी यहाँ पर 200 to 900 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने लेना है एंड टेम्परेचर इज 450 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन. फाइनली डिवाइडेड आयरन अगर आपने याद रखा हो तो आपको पता है. नेम द अबव प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज हेबर्स प्रोसेस. HA हेबर्स प्रोसेस आपको पता है अमोनिया के लिए ही होती है. जैसे कॉन्टैक्ट हमने भी सल्फ्यूरिक के लिए किया, ऑस्टवाल्ड है, ये हम आपको याद रखने ही पड़ेंगे. रजत यूज 400 लीटर ऑफ गैसियस मिक्सचर फॉर प्रिपेयरिंग अमोनिया. अब अमोनिया के लिए यहाँ पर टोटल जो उसने अमाउंट लिया है दिस इज 400. जो यूनिट उन्होंने यूज किया 400 लीटर उसने लिया है फॉर प्रिपेयरिंग अमोनिया. हाउ मच हाइड्रोजन वुड देयर इन 400 लीटर ऑफ मिक्सचर. तो 400 में इसमें किसका पूछा है हमारे पास हाइड्रोजन का. तो हाइड्रोजन कितना है 1:3 का रेशियो है. तो अगर हमें वैसे सॉल्व ऐसे तो ओरली दिख रहा है बट अगर ना दिखे तो x + 3x मिलाकर आपके पास 400 है. मीन्स 4x इज इक्वल टू 400. इट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ गया 100. लेकिन उसने इसका नहीं पूछा इसका पूछा है. तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है 3x है. इट मीन्स 3 into 100 इट इज 300 लीटर. तो मीन्स 100 लीटर हमारे पास नाइट्रोजन है एंड 300 लीटर वी हैव टेकन हाइड्रोजन टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. नाउ फर्दर if all the nitrogen and hydrogen were converted into ammonia means ये पूरा का पूरा 400 लीटर यूज हो रहा है. find the volume of ammonia formed in liter. अब कितनी कितनी वॉल्यूम है यहाँ पर. this is 1 volume, this is 3 volume and producing 2 volume of ammonia. so किसी भी एक का ले लेते हैं हम. like 1 volume of nitrogen produces कितने वॉल्यूम है ये आपको गैलुसेक्स लॉ पता ही है. produces कितना 2 वॉल्यूम ऑफ ammonia आ जाएगा. तो अब इसकी 1 वॉल्यूम हमने अभी x की वैल्यू निकाली है. इट इज 100 लीटर. तो 100 लीटर ऑफ अमोनिया प्रोड्यूसेस 2 into 100. इट मींस 200 लीटर ऑफ अमोनिया is produced in this reaction. It was an exothermic process. What it meant by exothermic? Exothermic का मतलब ही क्या होता है reaction proceeds with evolution of heat. जिसमें बाहर निकलती है. एंडो जो लेती हैं एक्सो जो देती हैं. एग्जिट से याद रखो जो देती हैं. तो reaction proceeds with evolution of heat. In second part, a fuse wire is an alloy made up of tin and lead. पता है आपको fuse tin और lead से बनता है. It is a safety device that prevents the damage of electronic gadget due to excessive flow of current. Can copper replace tin when making such an alloy? क्या copper replace कर सकता है? Justify your answer. तो answer is बिग नो. नहीं कर सकता. कॉपर रिप्लेस नहीं कर सकता. क्यों? बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज टू हाई. क्योंकि वो मेटल है और वो भी गुड कंडक्टर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई है. इसीलिए वो जल्दी मेल्ट ही नहीं होगा. और फ्यूज का पर्पस क्या होता है कि वो खुद मेल्ट हो जाता है तभी तो सर्किट को प्रोटेक्ट कर पाता है. तो यहाँ पर यूज नहीं हो सकता. नेम द एलॉय ऑफ लेड एंड टिन. क्या बनता है लेड और टिन को मिलाने से. तो आपके पास 5 ही हैं जो आपने एलॉयज लर्न करने हैं और उसमें ये भी आता है. दिस इज सोल्डर. सोल्डर वायर आपने कभी सोल्डरिंग करते हुए देखा होगा कि कैसे मेल्ट हो जाती है और फिर वहां पर जाकर ज्वाइंट हो जाती है. नाउ थर्ड पार्ट. Rajiv found light bluish color salt P in the laboratory. On heating it produced black residue and a colorless gas. Salt P also produced brisk effervescence with dilute HCl and the gas evolved turn lime water milky. जब भी lime water milky आया तो it is either carbon dioxide or sulfur dioxide. तो अब आगे जाना है. नो एक्शन विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन. यानी यहां से क्लियरली पता चल गया कि ये कॉपर का ही कुछ है. मतलब कार्बोनेट के लिए आ जाएगा कि वो करता नहीं है. एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कोई एक्शन नहीं करता है. तो नेम द कैटायन प्रेजेंट इन द सॉल्ट सैंपल दैट राजीव फाउंड इन द लेबोरेटरी. तो पहले इसके अंदर क्योंकि वो ब्लैक रेजिड्यू बना रहा है तो अब कार्बोनेट हमने पता लगा ली तो कॉपर हो गया यहाँ पर. तो कॉपर हो जाएगा. तो हमने पहले जो उसने पूछना है अगर कैटायन बोलेगा तो हमने कॉपर ही देना है. कैटायन बोला प्रेजेंट इन द सॉल्ट तो वो Cu2+ है. आपने पूरा लिखना है उसके लिए. Next is name the gas evolved when the sample was heated.
कौन सी गैस निकली जिसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया? दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। आइडेंटिफाई द सॉल्ट सैंपल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन राजीव रिकॉर्डेड। मैंने अभी आपको बताया कार्बोनेट की कैरेक्टरिस्टिक है वो, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा क्या हो गया? CuCO3 यानी कि कॉपर कार्बोनेट। कमिंग टू सिक्स पार्ट, atomic number of element A is 11. It forms an ionic compound with B. अगर 11 है तो क्या हो जाएगी configuration? 2, 8 and 1 in K, L, M shell. तो लास्ट वाले में 1 आ गया, तो ये 11 वैसे आपको पता है सोडियम है, बट हमने सोडियम मेंशन नहीं करना। आयोनिक कंपाउंड बना रहा है, बी के साथ बना रहा है। अगर आयोनिक बना रहा है तो एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा। आयोनिक बॉन्ड इन्हीं के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर्स विल मैच बी? इसमें से कौन सा है जो हो सकता है? तो हमें क्या लेना है इसके अंदर? नॉन मेटल सर्च करना है। तो नॉन मेटल के लिए कौन कौन हो जाएगा आप ध्यान से देखते जाओ। 14 है तो क्या आ गया इसके अंदर? ये कौन बन सकता है? आपके पास मेटेलॉइड बनेगा। ये 10 है तो इनर्ट गैस हो गई, तो इट मींस 9 आ जाएगा, जिसका 9 है। तो 9 है आपके पास 2 and 7, तो आउटर मोस्ट में 7 होगा और इसका 1 होगा, तो आराम से आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। In B part, draw the electron dot structure of compound formed between A and B. अब A और B के बीच में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने बनाना है। अब A क्या है और B क्या है ये तो आपको खुद अभी देख ही लिया आपने, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। अब A के आउटर मोस्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ही है, और B में हमारे पास 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये हम दिखा देंगे बिफोर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा? B के पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला भी यहाँ पर आ जाएगा। ए के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने दिया है, और बी के ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने ले लिया है। तो यहाँ पर हमारा ये स्ट्रक्चर हमको कंप्लीट करना है। अल्टीमेटली हम इसको फाइनली लिख भी सकते हैं कि ए प्लस एंड बी माइनस। ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द नेम गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टू विच बी बिलोंग? बी किसको बिलोंग कर रहा है? बी क्या है? 2 और 7 है। आउटर मोस्ट शेल में 7 होने का मतलब क्या हो जाता है? बिलोंगिंग टू हैलोजन फैमिली। सारे के सारे हैलोजेंस यानी कि सॉल्ट फॉर्मर्स हैं ये। डी पार्ट इज एलिमेंट डैश इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनमें से मेटल कौन है? ए है, तो ए इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि हमें नाम नहीं देना, सोडियम हमें पता है पर हमने देना नहीं है, क्लोरीन हमें पता है पर हमने देना नहीं है। ए और बी में क्वेश्चन है, ए और बी में ही आंसर होना है। तो ए यानी कि मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपने नॉन मेटल के लिए कर लिया, फिर उसमें हैलोजन पूछा, हमने वो भी दे दिया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ध्यान से बनाना है आपको, पूरा ब्रैकेट लगाकर उसके ऊपर माइनस इस तरह से लेके फाइनली कंप्लीट करेंगे। इन सेकेंड पार्ट, शुभा वांट्स टू इलेक्ट्रोप्लेट हर की चेन विद निकल। तो निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है टू प्रिवेंट रस्टिंग। विच इलेक्ट्रोलाइट कैन शुभा यूज टू इलेक्ट्रोप्लेट हर की चेन? तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेगी जिसमें निकल होना चाहिए? तो इट मींस हमारे इलेक्ट्रोलाइट का नाम क्या हो जाएगा? इट इज निकल सल्फेट, NiSO4 भी लिख सकते हैं, बट जब नाम पूछा है तो आप कंप्लीटली नाम दें उसका। इन नेक्स्ट पार्ट, नेम द एनोड इन द अबव प्रोसेस। तो कौन सी चीज है जिसको हमने एनोड बनाया है? तो एनोड तो डिसॉल्व होती है, तो निकल की कोटिंग करनी थी, यानी कि निकल की, प्योर निकल की एनोड होगी। तो पीस ऑफ प्योर निकल मेटल, निकल का ही मेटल जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होगा वो हम लेंगे एज ए एनोड, बिकॉज वी नो दैट इट विल डिसॉल्व, एंड डिसॉल्व होगी तभी तो इलेक्ट्रोप्लेट होगा। नेक्स्ट इज राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड। अब एनोड पे क्या होना होता है? ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने हैं। तो निकल है, निकल ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे तो निकल के ऊपर 2+ आ गया और 2 ही इलेक्ट्रॉन आपके पास यहां से आ गए। तो इसका इसमें इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है। एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। रिडक्शन में हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लॉस है तो इस तरफ लिखा है, गेन होता है तो हम इस तरफ लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर माइनस करके इसको इस साइड में लिखा जाता है। इन नेक्स्ट थर्ड पार्ट, salt P and Q undergoes reactions as described below. Identify the anion present in these salts on the basis of observation given below. First is, when silver nitrate solution is added to solution of P, a white precipitate insoluble in dilute nitric acid is formed. तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रही है जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में इनसॉल्युबल है, यानी घुल भी नहीं रही है, वो चीज आ रही है। तो इट मींस हमें एनायन के बारे में बताना है। अब एनायन कौन सा हो सकता है? तो पहले आप ये देखो, सिल्वर नाइट्रेट आपने लिया है, तो ए रिएक्शन लिखनी मस्ट नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। AgNO3 लिया,
अगर मैं इसको HCl में डालूंगी तो प्रेसिपिटेट AgCl की प्रेसिपिटेट बनती है जो व्हाइट कलर की होती है। तो AgCl की व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गई और साथ में आपके पास HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड बन रहा है। ये रिएक्शन हमने अपने लिए लिखी है। क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एनायन, तो हमें एनायन बताना है। तो एनायन कौन हो जाएगा इसके अंदर, क्या बना है, ये किसका एनायन है, इट इज क्लोराइड। तो क्लोराइड का एनायन आ जाएगा। और आप चाहो तो आप पूरा Cl के ऊपर माइनस करके भी दोनों तरह से दे दो, क्लोराइड लिख भी दो और माइनस भी, क्योंकि एनायन आपको पता होना चाहिए माइनस साइन है। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू Q, दूसरा वाला जो हमने लिया है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया तो गैस इज प्रोड्यूस्ड which turns acidified potassium dichromate solution from orange to green। अब यहाँ पर ये ऑरेंज को ग्रीन कर रहा है, तो यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने लिया है K2Cr2O7 जो कि ऑरेंज कलर का है और उधर जाके ग्रीन हो रहा है। तो इसमें हमने क्या डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट में डाला तो क्या बन रहा है, साथ में इसमें हमारे पास एक और चीज भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो इसने बोला है वो भी तो हमें डालना है, SO2। तो यहाँ पर 3 हमें बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 3 SO2 चाहिए। रिएक्शन इज नॉट मस्ट, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पर जो ग्रीन कलर आया वो क्यों आया, दिस इज Cr2SO4 इस ये जो है ये ग्रीन कलर का बन गया, क्रोमियम सल्फेट ग्रीन कलर का बना और साथ में फिर K2SO4 बन जाएगा और साथ में बाकी चीजें भी बन रही है ना, बैलेंस तो करना है रिएक्शन को, वाटर बन रहा है। बट अब हमारा हुआ क्या, ऑरेंज से ग्रीन कलर हो गया। तो अब एनायन कौन यूज किया इसके अंदर हमने, एनायन का नाम क्या हो जाएगा, जब भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है तो एनायन के तौर पे हमने किसको लिया होता है, सल्फाइट। सल्फाइट मतलब हम ITE लगाएंगे, सल्फाइड का मतलब होता है SO3 माइनस। ये अगर आप नहीं लगाओगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा। जब भी SO3 के ऊपर यहाँ हमने 2 माइनस लगाया तो ये सल्फाइड हो गया। जब भी ये हम डालते हैं तभी हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। रीमा फाउंड ए हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड Ml2। This solid substance could conduct electricity in both molten and aqueous state and has high melting and boiling point। तो क्लियर इंडिकेशन होगी कि कौन सा बॉन्ड है। ऑन कैरिंग आउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस Ml2, जैसे आप लेड प्रोवाइड सोच सकते हो, बाकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। द कैथोड साइज इंक्रीज हो रहा है और एनोड थिनर हो रही है क्योंकि एनोड घुल रही है। द एनोड इज मेड ऑफ, एनोड किसकी होती है, जो घुलती है, मेटल M की होगी तभी तो वो डिसॉल्व होगा। तो मेटल M हमारा फोर्थ के ए पार्ट में हमारे पास आ जाएगा, जो मेटल M हमने यूज किया है वो डिसॉल्व हो रहा है, तो एनोड उसी की है। Ml2 इज ए कंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री, कोई भी चीज कंडक्टर, गुड कंडक्टर कब बनती है, जब उसके पास फ्री आयोन्स होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो गुड कंडक्टर कभी होगा ही नहीं, तो आयोन्स होंगे और वो फ्री होंगे तभी कोई चीज गुड कंडक्टर बनती है। In question number 7, first part, Kavya needs 59 gram of ammonium sulfate for her plant. She uses ammonia and sulfuric acid to prepare ammonium sulfate. Reaction given नहीं है, आपको खुद लिखनी है। Calculate the volume of ammonia required at STP to prepare the fertilizer. Fertilizer कौन है, ammonium sulfate। किससे बन रहा है, ammonia in addition to sulfuric acid। क्या बन रहा है, ammonium sulfate, NH4 और SO4, अमोनियम सल्फेट। NH4 को बैलेंस, इसको सल्फेट का 2 नीचे आ जाएगा और बैलेंस, जब तक गेलुसेक लॉ या कोई भी आपने स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन करना है, इक्वेशन को हमें पहले बैलेंस करना है। तो बैलेंस के लिए नाइट्रोजन का 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आएगा, तो 2NH3 H2SO4 एंड देन अमोनियम सल्फेट, ये इसकी बैलेंस रिएक्शन होगी। नाउ क्या पूछा है उसने, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, अमोनिया रिक्वायर्ड एट एसटीपी, ये कितना होगा जो हमारे पास वो फॉर्म होगा। अब अमोनियम सल्फेट बन कितना रहा है, दिस इज 59 ग्राम। तो पहले हमें इसका मॉलिक्यूलर मास ही कैलकुलेट कर लेते हैं कितना बन रहा है, इसी के नीचे मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस में इट इज बेटर कि हम इसका मॉलिक्यूलर मास यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 इंटू नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का, सल्फर का 32, 16 इंटू 4 दिस इज 64, तो 14 प्लस 4 18 इंटू 2 36 प्लस 32 प्लस 64, तो कितना आ जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 132 ग्राम। अब 132 ग्राम प्रोड्यूस कब हो रहा है, जब यहां पर हम इसके 2 मोल ले रहे हैं। अब हमें ओरिजिनली कितने मोल लेने हैं, तो इसके लिए मेरे पास आपको जो मैंने अपनी वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला बताया है, मैं पहले उससे करके दिखाती हूँ आपको कि उससे सिंपल रहता है। क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय उसका कितना मॉलिक्यूलर मास है इज इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन वॉल्यूम के साथ भी रिलेट करेगा, तो हमें वॉल्यूम ऑफ गैस मिल जाएगी। उसने यही तो पूछा कितना अमोनिया लें,
और डिवाइडेड बाय 22.4 जब लीटर में है और यहाँ लीटर में ही है। अब वेट ऑफ द सब्सटेंस कितना, क्वेश्चन में अभी वहां पर हमने कितना लिखा था 59, मॉलिक्यूलर मास कितना है, इट इज 132, वॉल्यूम ऑफ गैस हमने कैलकुलेट करनी है एंड नेक्स्ट इज 22.5 सॉरी 4, तो V का कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 59 इंटू 22.4 एंड डिवाइडेड बाय 132। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो योर आंसर विल बी 20.02 लीटर। तो ये वॉल्यूम है जो अमोनिया की हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पर अभी एक चीज और रह गई, यहाँ पर 2 वॉल्यूम है, तो जब मैंने वॉल्यूम लिया यहाँ पर तो हमें इसके साथ में ही 2 भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इक्वेशन बैलेंस नहीं लेंगे तो आंसर ठीक नहीं आएगा। अभी तो मैंने कैलकुलेशन लिख दी वहां पर, बट अदरवाइज यहाँ पर वॉल्यूम के साथ में आपको 2 भी लगाना है। तो जब मैंने 22.4 लिया यहाँ पर, इसके साथ हमें 2 भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने 2 मोल लिए हैं, तो इंटू 2 आएगा, तब आपके पास ये पूरा प्रॉपर आंसर निकल के आएगा। अगर आप उस 2 को स्किप कर दोगे तो आपका आंसर डबल आ जाएगा। यहां से ये चीज जानबूझ के मैंने 2 छोड़ा है, अदरवाइज ये यहाँ पर इसका ले लेते हैं हम, 22.4 है तो हमने यहां से ले लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू योर नॉर्मल यूनिटरी मेथड, इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन कितना हमारे पास आ रहा है, 132 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, कितनी ली हमने, 2 इंटू 22.4, क्योंकि 1 मोल का 22.4 है, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली 2 लगा दिया, इतने ऑफ एमोनिया। तो अब हमारे को क्वेश्चन में कितना गिवन, पहले 1 पे निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22.4 एंड डिवाइडेड बाय 132। देन इन द क्वेश्चन 59 ग्राम इज द मास ऑफ अमोनियम सल्फेट, तो 2 इंटू 22.4 इंटू 59 अपॉन 132। अब इसको कैलकुलेट करेंगे अगेन, 20.02 लीटर ही आपके पास आंसर आएगा। In second part, 300 cubic centimeter of ethane undergoes complete combustion with 1250 cubic centimeter of oxygen to give carbon dioxide. इसमें reaction given है and water according to the equation given below. Then calculate the total volume of carbon dioxide produced. तो balanced equation already given है, C2H6 आपने लिया, oxidation करी 7O2 और आपके पास 4 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएंगे और साथ में 6H2O। तो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन ऑलरेडी गिवन। अब इसमें इथेन कितनी है, वैल्यू इज 300 cc एंड अंडरगोज कंप्लीट कंबस्शन विद 1250 cc ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज 1250 cc। तो पूरा यूज ही नहीं होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है ये प्रोपोर्शन में नहीं आ रहा है। टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर अगर आप लिखेंगे, दिस इज 2 वॉल्यूम 7 वॉल्यूम एंड इट इज प्रोड्यूसिंग 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इट मीन्स 300 cc आपके पास। चलो पहले वॉल्यूम वाइज ही लिख लेते हैं। नाउ 2 वॉल्यूम ऑफ C2H6 प्रोड्यूसेस 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 वॉल्यूम विल प्रोड्यूस 4/2, तो इट मीन्स आपके पास गिवन क्वांटिटी कितनी है, 300 cc, इट विल प्रोड्यूस इनटू 300 मीन्स कितना हो गया, इट इज 600 cc और कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूसिंग। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नेम एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड गैस, कितनी अनयूज्ड रह गई, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कितनी ऑक्सीजन यूज हुई है। तो अगेन वी हैव टू राइट 2 वॉल्यूम ऑफ C2H6 रिक्वायर, कितनी चाहिए, रिक्वायर 7 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, 300 cc, इट में रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, 7/2 इंटू 300, इट मीन्स 150 एंड 15 इंटू 7 करोगे तो आपके पास आया 1050 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग ऑक्सीजन कितनी बच जाएगी, जो बाकी है वो नहीं यूज हुई। टोटल हमारे पास 1250 थी, जिसमें से 1050 यूज हुई है, इट मीन्स 200 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो अभी भी रिमेनिंग ऑक्सीजन इसके अंदर बच गई है, तो वो रिमेनिंग में आ जाएगा आपके पास 200 cc ऑफ ऑक्सीजन। Name the law that explains the concept of calculation of combining of gas volumes. So as you all know, this is Gay-Lussac's law, and please learn its definition also because it is important from examination point of view. In third part, the pH value of pure water is 7. Compare the pH values of following solution with water. आपको पता ही है, सल्फर डाइऑक्साइड is hydrolyzed with water. अगर SO2 को मैंने पानी में डाला तो क्या हो जाएगा, एसिड बनेगा। तो एसिड का अगर हम कंपेयर करेंगे न्यूट्रल 7 से, तो एसिड किस साइड में आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन बिकम एसिडिक, सो इट्स pH विल बी बिलो 7। बिलो और अबव में आंसर देना, बिलो 7।
अमोनिया इज हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर, तो अमोनिया क्या बन जाएगा, सोल्यूशन विल बी बेसिक, बेसिक हो जाएगा तो पीएच ऑफ द सोल्यूशन विल बी अबव 7, तो 7 वो वाला बिलो 7, न्यूट्रल हो गया 7, अगर बिलो हो जाएगा तो एसिड और अबव हो जाएगा तो बेस। नाउ ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ अमोनियम आयन, वो तो आपको पता है ये बहुत बार आता है, सिर्फ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5, ये आ गए आपके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, इनको जब आप कंपेयर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास चारों तरफ हाइड्रोजन आना है, इधर इधर और इधर हाइड्रोजन, और ये वाला जो हो जाएगा ये डेटिव के साथ आ जाएगा, तो NH4 हो गया, क्योंकि इसने ये वाला किसके साथ लिया तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज लगाना नहीं भूलना, तो NH4 के ऊपर एक प्लस का चार्ज आपने जरूर लगाना है। यहाँ पर जहां जहां हाइड्रोजन आए, हाइड्रोजन के लिए अलग सिंबल आप यूज करेंगे, एक के लिए सेम रहेगा क्योंकि वो डेटिव बॉन्ड है और ये वाले कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ध्यान से स्ट्रक्चर पूरी प्रैक्टिस करिए, बिफोर और आफ्टर कॉम्बिनेशन पूरा करना है आपने। Now coming to question number 8, part 1, Preeti wanted to prepare a saturated hydrocarbon from an unsaturated hydrocarbon, C2H4 लिया गया है, C2H4 इथीन हो गया प्लस हाइड्रोजन और X लिखा है हमें और A बन रहा है, तो डायरेक्टली नहीं दिया, और 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है आपके लिए, यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया। आइडेंटिफाई X वेयर X इज द कैटलिस्ट यूज फॉर द रिएक्शन, कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो यहाँ पर निकल यूज होगा, तो कौन है X किसको बिलोंग कर रहा है, निकल है, निकल इज यूजिंग एज ए कैटलिस्ट हेयर। इन सेकेंड पार्ट राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ए, यानी कि जो बना है वो क्या है, तो पहले आपने देख ही लिया C2H4 है, जब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन ऐड होने के बाद CC रह गया, ये पहले थे हमारे पास 4 और 2 और ऐड हो गए तो सैचुरेटेड हो गया। अब सैचुरेटेड में ये किसका हो जाएगा, सब H यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपके पास ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज इथेन, तो पहले ये इथीन था, डबल बॉन्ड था, यानी कि अनसैचुरेटेड था और अब ये सैचुरेटेड बन गया, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने लिखना है C2H6। नाउ कंप्लीट एंड बैलेंस द इक्वेशंस गिवन बिलो, नीचे भी आपको ये भी सॉल्व करने हैं। C2H5 COONA, C2H5 COONA प्लस यहाँ पर NaOH है, NaOH और CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये रिएक्शन तो आपकी जानी पहचानी है, किसकी फॉर्मेशन में पढ़ते हैं हम, इथेन, C2H6 ही प्रिपेयर होगा यहाँ पे और साथ में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज CaC2 कैल्शियम कार्बाइड आ गया प्लस वाटर, क्या फॉर्म होगा, कहां पढ़ी है ये वाली रिएक्शन आपने, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन, यानी कि C2H2 बनेगा, यहाँ पर एसिटिलीन फॉर्म हो रही है, मतलब इथाइन, आइन है लेकिन यहाँ पर इन इस एसिटिलीन लिखते हैं तो डबल बॉन्ड से कंफ्यूज हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होगा और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। As you can see, acetylene is forming here, but for balancing we have to place 2 here, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो हाइड्रोजन के आगे 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो हमें हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए we have to place 2 here. In third part, a compound X having vinegar-like smell, when treated with ethanol in presence of the acid Z gives a compound Y which has a fruity smell. The reaction is, जब fruity smell बन रही है आपको पता चल गया होगा esterification है, बट हमने रिएक्शन कंप्लीट करनी है और जो भी उन्होंने XYZ मांगे हैं उनके प्रॉपरली हमने सिंबल लिखने हैं, तो C2H5OH यानी कि क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल के साथ हम क्या लेते हैं जिसकी वजह से ये रिएक्शन होती है, इथेनोइक एसिड, इट मीन CH3COOH, तो इथाइल अल्कोहल, ये रिएक्शन तो आपको पेपर में आनी ही आनी है, इसको बहुत अच्छे से कर लो। इथाइल अल्कोहल ले लिया हमने और साथ में इसका भी लिखिए इथेनोइक एसिड, देन आगे क्या बनेगा हमारे पास, डेल्टा Z लिखा है उसने, Z का मतलब तो आपको पता है, यहाँ पर हमने हीट प्रोवाइड करनी है, हीट की प्रेजेंस में एस्टर्स बनेंगे। अब एस्टर्स में क्योंकि यहाँ पर CH3 और C2H5 दोनों हैं तो इथाइल इथेनॉइड बनेगा, इट मीन CH3COOC2H5, इट इज इथाइल इथेनॉइड, इथाइल इथेनॉइड इज फॉर्मिंग हेयर। तो इथाइल एसीटेट भी, हम इसको आपकी बुक में एसीटेट के उससे लिखा हुआ है तो एसीटेट भी लिख सकते हैं आप, इथाइल एसीटेट इज फॉर्मिंग इन दिस रिएक्शन। तो ये एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन तो आपको करनी ही करनी है, कॉम्पिटेंसी फोकस में भी देखा होगा, अलग अलग हर मेथड से आ सकती है, लेकिन अब इसमें आपको लास्ट में जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि XYZ क्या क्या है तो लिखना है। X हमने कहाँ लिखा, ये इथेनोइक एसिड हमारा X की जगह पे हमने मेंशन करना है, Y में उसने बोला कि क्या चीज बन रही है, Y में एस्टर बन रहा है, यानी ये चीज जो है ये हमारी
Y की जगह पे आ जाएगी, Z की जगह सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो Z में आपके पास यहाँ पर स्पेशली अलग से मेंशन करिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, X ये है, Y ये है, पूरा लिख के लास्ट में आंसर कंक्लूड करेंगे। आइडेंटिफाई Y एंड Z, ये हमारा इसका ए पार्ट हो गया। Y और Z को हमने कर लिया। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ X, वो हमने लिख दिया CH3COH। इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो ये तो आपको पता ही है, CH3 है तो एक हो गया हमारे पास 1 2 3, और एक उसके साथ हमारे पास C के पास डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक OH आ जाएगा, तो COOH, और इसमें यहाँ पर आप H बैलेंस कर लो। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वैसे हमने सिर्फ ऐसे दे दिया तब भी चल जाएगा। नेम द अबव रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम ही एस्टेरिफिकेशन है, और ये पेपर में किसी ना किसी फॉर्म में तो आनी है, चाहे एमसीक्यू में ही आ जाए। फोर्थ पार्ट, कंपाउंड ए एंड बी आर ट्रीटेड विद ब्रोमीन डिसॉल्व्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ब्रोमीन है जिसको हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व किया है, एंड A does not react while B gives 1,2-dibromomethane। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि इन दोनों में से एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड है। आइडेंटिफाई टू विच होमोलोगस सीरीज टू A एंड B बिलोंग, क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन डिफरेंट दिखाई दे रही है। तो अब A जो हो गया, A किसको बिलोंग कर रहा है, A हमारे पास सैचुरेटेड आ गया, और सैचुरेटेड में कौन आ जाता है हमारे पास, एल्केन्स। तो आपने नाम देना है सीरीज का, तो आपको एल्केन्स लिखना पड़ेगा। बी जो है वो हमारे पास अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड में एल्कीन भी हो सकता है और एल्काइन भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन दोनों में कॉमन ही आती है कि आप जब उसको डालते हो तो वो कलरलेस हो जाता है। नाउ गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर बी। बी के लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देना है आपको। मैंने बोला अब आप H2C डबल बॉन्ड CH2 भी ले लो या ट्रिपल बॉन्ड भी, दोनों के लिए चल जाएगा, दोनों लिख सकते हैं। गिव एनी वन ऑब्जर्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। तो आपको पता है ब्राउन कलर डिसअपीयर हो रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट, क्योंकि एडिशन बना है। तो आपने लिखना क्या है कि जो रेडिश ब्राउन कलर था, रेडिश ब्राउन कलर वो डिसअपीयर हो रहा है। डिसअपीयर मतलब धीरे धीरे फेड हो जाएगा। तो रेडिश ब्राउन कलर था किसका, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड को जब हम ब्रोमीन डालते जाते हैं तब आ जाता है। तो ब्राउन कलर डिसअपीयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बना यहाँ पर, एडिशन प्रोडक्ट बना। तो एडिशन प्रोडक्ट की वजह से ये डिसअपीयर हो गया। As you know, I am going to start chemistry crash course very soon. So if you want to enroll yourself, you can tell me or you can comment in the comment section also. फर्स्ट थिंग आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, जैसे एग्जाम सब पास आने वाले हैं, मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो आप सब मुझसे कमेंट करके ये पूछते हैं कि मैम ये वीडियो है आपकी, ये वीडियो नहीं है। प्लीज मेरे चैनल पे सर्च करिए, प्लेलिस्ट आती है साइड में, आप प्लेलिस्ट पे सर्च करेंगे तो आपको सारे मिलेंगे। इंग्लिश के लिए अलग है, केमिस्ट्री के लिए अलग हो जाएगी, बायोलॉजी के लिए अलग है, मैथ्स के लिए अलग है, फिजिक्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, सब सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है। प्लीज खुद ढूंढे। आप मुझे लिखते हो मैम सेंड कर दो, इतना टाइम अब नहीं है, पहले ही ऑलरेडी हेक्टिक शेड्यूल है, तभी आपने देखा ये केमिस्ट्री के पेपर बनाने के लिए मेरे को देर हो गई। मुझे पता है आप इसकी वेट कर रहे हो, बट लेट हो चुका है ऑलरेडी। प्लीज अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम ऑल्सो। थैंक यू।